السلام علیکم ناظرین، 4TV کشمیر میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مرکز نے سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز کے لیے 8ویں پے کمیشن کو دی منظوری، جائزہ لینے 3 رکنی کمیٹی دی جائے گی تشکیل۔ مرکز وزیر اشونی ویشنو نے کیا اعلان۔ جوڈیشل عہدوں کی تشکیل کا تقررات کا معاملہ، جموں کشمیر حکومت کے چیلنج کو سپریم کورٹ نے کیا خارج۔ راجوری کے بڈھال دیہات میں فوڈ پوائزن کے نتیجے میں ہوئی اموات، طبی ماہرین نے پیش کی ابتدائی تحقیقات۔ او بی سی کو جموں کشمیر میں تحفظات بی جے پی نے فراہم نہیں کیے، اشوک کول کا بیان، کہا کمیشن نے اپنا کام کیا ہے۔ مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت، سری نگر میں پیش آئے واقعے کی مفتی اعظم نے کی مذمت، سخت قانونی کارروائی کا کیا مطالبہ، مسلکی اتحاد پر بھی دیا زور۔ بارہمولہ میں منشیات کی تسکری کے خلاف پولیس نے کی کارروائی، مبینہ ڈرگ اسمگلر گرفتار، منشیات کی گئیں ضبط۔ اور وادی کے کئی ایک حصوں میں ہوئی تازہ برف باری، کشمیر میں ٹرین خدمات عارضی بنیادوں پر کر دی گئی بند۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ مرکزی سرکار محکمہ جات کے ملازمین کے لیے مرکزی حکومت نے 8ویں پے کمیشن کے تحت ادائیگیوں کے لیے قانون سازی کے عمل کو منظوری دے دی ہے۔ آج مرکزی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ لیے گئے فیصلے کے تحت تمام سرکاری محکمہ جات کے لیے اپنی خدمات کو انجام دینے والے ملازمین کو 8ویں پے کمیشن کے تحت تنخواہوں کی اجرائی اور معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر برائے اطلاعات عامہ و نشریات اشونی ویشنو کے مطابق کمیشن کے چیئرمین اور ان کے ہمراہ 2 ممبران پر مشتمل ایک کمیٹی بہت جلد تشکیل دی جائے گی تاکہ 8ویں پے کمیشن کے تحت جائزہ لیا جا سکے۔ مرکزی وزیر نے کہا ہے کہ 7ویں پے کمیشن کا اطلاق سال 2016 میں عمل میں آیا، جو سال 2026 تک جاری رہے گا۔ 8ویں پے کمیشن پر عمل آوری سال 2026 میں ہوگی۔ مرکزی وزیر نے ایک پروگرام کو مخاطب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے تمام مرکزی سرکاری ملازمین کو 8ویں پے کمیشن کے تحت اجرائیوں کی اجازت دے دی ہے۔ پردھان منتری جی نے کیندر سرکار کے سبھی کرمچاریوں کے لیے 8th سینٹرل پے کمیشن کو منظوری دے دی ہے۔ 8th سینٹرل پے کمیشن آپ سب جانتے ہیں 1947 سے اب تک 7 پے کمیشنز ہوئے ہیں، اور پردھان منتری جی نے ایک ریگولر ردم کے ساتھ پے کمیشن بنانے کا جو ایک سنکلپ لیا ہے، اس کے حساب سے 2016 میں لاسٹ پے کمیشن 7th پے کمیشن سٹارٹ ہوا تھا، تو 2026 میں اس کا ٹرم کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس سے ویل بیفور 2025 میں 8th پے کمیشن اسٹیبلش کرنے سے سفیشینٹ ٹائم ملے گا so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. جیسا آپ جانتے ہیں اس میں میسو کنسلٹیشن ہوگا with the state governments, with different stakeholders in the central government, in the PSUs، ان سب کے ساتھ ڈیٹیلڈ کنسلٹیشن ہوگا، اور چیئرمین اینڈ 2 ممبرس کا بھی شیگر اپوائنٹمنٹ ہوگا۔ ایک طریقے سے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔
जम्मू कश्मीर जुडिशल में आला ओहदों पर भर्तियों से मुताल्लिक हाई कोर्ट के हुक्मनामे के चैलेंज को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के हुक्मनामे को चैलेंज किया गया था, जिसमें अदालत आलिया ने हुकूमत को हिदायत जारी की थी कि वो 2 माह के अंदर अदलिया में 334 आला ओहदों की गुंजाइश पैदा करते हुए उन पर भर्तियां अमल में लाए। हुकूमत जम्मू कश्मीर ने हाई कोर्ट के उस हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने खारिज कर दिया। जस्टिस हरीश केश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि मामला जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के ज़ेर समाअत है। अदालत आलिया की जानिब से जारी किए गए अहकामात आर्जी बुनियादों पर है, जिसको इंतज़ामी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। अदालत उज़्मा ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के चैलेंज को खारिज कर दिया। राजौरी बढाल देहात में होने वाली मुश्तबा अमवात से मुताल्लिक इब्तदाई तहकीकात में बात सामने आई है कि अमवात फूड पॉइजन की वजह से हुई थी। वाज़ेह है, राजौरी के बढाल देहात में पिछले बरस 7 दिसंबर से 12 जनवरी 2025 के दरमियान जुमला 14 अफराद फौत हो गए, जिनमें 11 बच्चे थे। मुबैना तौर पर 2 ख़ानदानों के अफराद ने एक साथ किसी ग़िज़ा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनकी सेहत बिगड़ गई और वो मरहलावार अस्पताल में दाखिल किए गए। कुछ अरसा इलाज के दौरान एक के बाद एक वो फौत हो गए। होने वाली मुश्तबा अमवात ने राजौरी के बढाल देहात में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। ताहम हुक्काम की जानिब से आला सतही तिब्बी जांच का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अमवात फूड पॉइजन के नतीजे में हुई। मज़ीद तहकीकात जारी बताई गई हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने OBC तहफ़्फ़ुज़ात मामले में भाजपा की जानिब से तनक़ीदों को मुस्तरद कर दिया। इन्होंने कहा है कि OBC तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात बीजेपी ने फ़राहम नहीं किए, बल्कि मुतल्लक़ा कमीशन ने फ़राहम किए हैं। श्रीनगर में मुनक़िदा बीजेपी के एक इजलास में शिरकत के मौके पर अशोक कौल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि OBC जिन्हें OSC कहा जाता था, उन्हें 2% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए थे। बीजेपी ने इसमें मज़ीद 2% इजाफ़ा किया था, जबकि कमीशन ने इसमें मज़ीद इजाफ़ा करते हुए इसको जुमला 8% कर दिया था। OBCs को कौमी सतह पर फ़राहम तहफ़्फ़ुज़ात जम्मू कश्मीर में भी फ़राहम किए गए हैं। इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका दिन मना रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, फाइनल जो हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इसलिए हमारे मोदी जी ने इसको संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया। पिछले दिन हमने सब जगह 26 नवंबर मनाया है। 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक ये जो 2 महीने हैं, 2 महीनों पर हम जगह जगह कॉन्स्टिट्यूशन के गौरव में कार्यक्रम कर रहे हैं। वही आज ये कार्यक्रम था कॉन्स्टिट्यूशन के गौरव में, कॉन्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे श्रेष्ठ कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसको ड्राफ्ट करने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जी 11 महीने की तपस्या है, और उसको याद करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने कैसे दुत्कारा, उसको बताने के लिए ये कार्यक्रम हमने रखा। ये ऐसा नहीं है वो उसके उस ट्रॉल को गलत तरीके से पेश किया गया है, ऐसा नहीं है। वो अब जो राहुल गांधी का कल का स्टेटमेंट है कि वो स्टेट के साथ लड़ाई करेगा, ऐसा थोड़ी है। वो जो हुआ है वो उनके बयान को, अमित शाह जी के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, ऐसा नहीं। वो कुछ नहीं करा रहा है। वो राहुल गांधी कुछ नहीं, अरे कंपेल कर, वो कुछ नहीं करा रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट है। उसमें जो सभी जातियां हैं, उन जातियों का सम्मान है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वो सारी व्यवस्थाएं रखी है, और हमारे मोदी जी ने OBC कमीशन को जो संवैधानिक दर्जा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। ये राहुल गांधी
अपोजिशन के लिए वो अपोजिशन करता है और वो उसका कुछ नहीं। कोई जनरल कैटेगरी का कोई, जो सारे देश भर में है वो जम्मू कश्मीर में जो होगा उसको की है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बनाई है कोई कमेटी, सब कमेटी, वो देखेगी कहाँ इनजस्टिस हो रहा है। अगर वो रिपोर्ट देगी इनजस्टिस हो रही है तो कमेटी का फर्ज है कि वो सरकार को बताए कि जहाँ इनजस्टिस हो रही है उसको ठीक करे। ओपन वर्ड को दी है ना वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रिजर्वेशन जो है EWS, वो क्या है 10% रिजर्वेशन तो है ही ओपन के लिए। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान वक्फे से बर्फबारी हुई है। श्रीनगर के बशमूल वादी कश्मीर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई है। मिलने वाली आखिरी इत्तलात के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद हल्की बर्फबारी की पेशकयासी की है। इस दौरान कई एक हिस्सों में मतला अबर आलूद रहेगा और बाज़ इलाकों में हल्की बारिश के भी आसार हैं। महकमे के मुताबिक 19 जनवरी तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं हैं। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, काजीगुंड, कोलगाम, शुपियां, अहरबल से हल्की बर्फबारी की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज के मुताबिक हुक्काम ने तमाम अजला में एहतियाती इक़दामात के तहत इंतजामात को क़तियत दे दी है। कश्मीर में आज मौसम ने फिर एक बार करवट बदली, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। अगर बात की जाए तो सूबाई इंतजामिया ने हर ज़िला हेडक्वार्टर पर मैन एंड मशीनरी को तैयार रखा है। मुख्तलिफ महकमा जात जो इससे जुड़े हैं वो तैयार रहे और किसी भी तरह आवाम को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, उसे देखते हुए मैन एंड मशीनरी काम पे देखी गई। वहीं अगर बात की जाए तो जब भी ये बर्फबारी होती है तो खाने पीने की अशियाई ज़रूरियात जो है उनकी कीमतों में इजाफा भी होता है और जो चोर बाजारी में मुलव्वस लोग होते हैं वो भी इस वक्त सर उठाते हैं। इस तरह के हरकतों को रोकने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक है और देखना ये होगा कि अगर बर्फबारी ज़्यादा होती है क्या आवाम को राहत दिलाने के लिए सरकार काम कर पाएगी या कि आवाम को मुश्किलात का ही सामना करना पड़ेगा। शबनम फयाज, 4TV न्यूज़। शदीद बर्फबारी के पेश नज़र वादी कश्मीर में रेल खदमात को आर्जी बुनियादों पर बंद कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक बानिहाल और बडगाम के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को आर्जी बुनियादों पर रोक दिया गया है। बताया गया है कि बानिहाल से बडगाम के दरमियान कई एक हिस्सों पर होने वाली बर्फबारी और फिसलन के पेश नज़र ट्रेन सर्विस बंद की गई। रेलवे पटरियों से बर्फ़ की सफाई का काम जारी है। मौसम में बेहतरी और बर्फ़ की सफाई की तकमील के साथ ही ट्रेन खदमात दोबारा बहाल कर दी जाएंगी। इसी दौरान कई एक अहम शाहराहों पर ट्रैफिक को भी बंद किया गया। बताया गया है कि मुतासरा इलाकों में कौमी शाहराहों से बर्फ़ की सफाई के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बर्फबारी के बाद काजीकुंड में सड़क पर फिसलन पैदा हो गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा। इस दौरान कई गाड़ियों के सड़क पर फिसलने के वाक़यात पेश आए, ताहम कोई हादसा पेश नहीं आया। इस दौरान एसडीपीओ काजीकुंड और SHO काजीकुंड के पुलिस एहलकारों ने रास्ते में फंसे हुए ड्राइवर्स और मुसाफिरीन को फौरी तौर पर ताउन फराहम किया है। फिसलकर सड़क के किनारे फंस जाने वाली गाड़ियों को निकाला गया। ड्राइवर्स और मुसाफिरीन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। लोगों की उम्मीद ही इन चीज़ों पे खड़ी है जो पास्ट में स्नो क्लियरेंस के मामले में और पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाने के सिलसिले में जो कुलगाम पुलिस ने अपना कीमती रोल अदा किया है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस उन पे बढ़ गई है। जो आज SDPO काजीगुंड साहब ने किया है, हम इस बात के लिए उनकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम होगी। SSP साहिल संग्राल साहब की निगरानी में जो कुलगाम पुलिस अपने एक्शंस कर रहे, जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे, लोगों को हर किस्म की कंफर्ट और सहूलियात देने के लिए वो काबिल सराहना है, काबिल तारीफ़ है। ऑल J&K PDL-TDL इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज़ यूनियन KPDCL की हड़ताल आज दूसरे दिन में दाखिल हो गई।
برہم مظاہرین نے آج برفباری کے دوران بھی دھرنا دیتے ہوئے حکام سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ ان کی جائز مانگیں پوری کی جائیں، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انہوں نے اپنی ہڑتال کو 18 جنوری تک توسیع دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اعلیٰ حکام ملازمین کے مطالبات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، ان کے مطالبات کی عدم یکسوئی پر وہ اپنے احتجاج میں مزید شدت لائیں گے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ سر کہ آپ نے یہاں پہ آئے، ہماری جو یہ پروٹیسٹ پروگرام ہے کل سے جو چل رہا ہے تو آپ اس ٹائم بھی یہاں پہ ہمارے پاس آئے، اس کے لیے آپ کا پہلے ہم شکر گزار ہے۔ دوسرا ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میڈیا کے ذریعے سے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے جو آفیشل ہائر اپس ہے وہ کس چیز میں بیٹھے ہیں، کس چیز کو لے کے بیٹھے ہیں، کون سی ایروگنس ان کے پاس ہے کہ وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ہم ان کو اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا یہ پروٹیسٹ تھا جو ہم نے آج 4 بجے تک رکھا تھا، اب ہم آپ کے ذریعے سے یہ گریز کے جو ہمارے لڑکے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو بالتل میں کام کر رہے ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو پورے سرکل گاندربل میں لڑکے کام کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا پروٹیسٹ ہے یہ اب ہم سیٹرڈے 4 بجے تک یہ ہم کال ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا لڑکا کوئی بھی کام نہیں کرے گا، کسی بھی حالت میں کوئی لڑکا ہمارا گریز سے لے کے بالتل تک کوئی بھی کام نہیں کرے گا۔ جب تک ہمارے ہائر اپس اپنی نیند سے جاگے گے نہیں تب تک ہمارا پروٹیسٹ کنٹینیو رہے گا۔ ضلع اسپتال کولگام میں نئے ڈیجیٹل ریڈیوگرافی سسٹم کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام میں ڈاکٹر اے بی غنائی رانا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ نے ڈی سی کولگام کے بشمول دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کی وسادت سے لوگوں کو اپنے خاص عام کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری یہ مشین تھی CR سسٹم، اس میں کچھ دنوں سے کچھ پرابلم ٹیکنیکل فالٹ ہوا تھا، جو میرے آنے سے پہلے وہ ٹیکنیکل فالٹ آیا تھا، مگر جو ہی میں نے یہاں پر جوائن کیا میں نے لوگوں کی پریشانی دیکھی۔ لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں نے اس کے لیے ڈفرینٹ کارنرس میں کو کانٹیکٹ کیا۔ پرٹیکولرلی ہمارے ڈی سی سر جو ہیں ان نے بڑا ہی مدد کیا اس سلسلے میں۔ ان نے ہمیں ایک اسے بیٹر سسٹم، جو CR سسٹم تھا اسے بیٹر سسٹم ہمیں اس کے لیے پیسے دیے۔ پھر CMO کولگام کو میں نے پرسویٹ کیا، اس کو کنٹینیوسلی ان ٹچ رہا، اور اس نے ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم یہ ایکس رے مشین جو CR سسٹم کے بدلے DR سسٹم لایا، وہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہم نے کل ہی انسٹال کیا۔ اور میں لوگوں کو عام جنرل پاپولیشن پرٹیکولرلی جو یہاں کے کولگام کے لوگ ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ فیسلٹی یہاں پر انسٹال ہو گئی ہے اور آپ اس کا فائدہ لیجیے۔ میکینیکل اینڈ ہاسپٹل انجینئرنگ ڈویژن پلوامہ شوپیاں کی جانب سے ضلع موسمی چیلنج سے نمٹنے کے لیے عملے کو متحرک کر دیا گیا۔ AEE عبدالرحمان نے کیے جانے والے اقدامات سے متعلق تفصیلات بتلائی ہیں۔ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو بھی ویدر ماڈلز آج تک آئے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی فرق رہا ہی ہے۔ جو بھی ان کی پریڈکشن جو پرسائز ہو رہی تھی اس میں کچھ 19-20 کا فرق ہو ہی رہتا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری جو پریپریشن ہے وہ پہلے سے ہی تیار رہتی ہے۔ ہر جگہ ہمارے کنٹرول رومز، جو پلوامہ ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس 3 کنٹرول رومز یہاں ہیں، اب ہمہ میں 1 ہے، دوسرا پلوامہ مین میں ہے اور تیسرا ہمارا ترال میں ہے۔ 21 مشینز ٹوٹل میں ہیں، اس میں 2 ابہامہ میں ہے، 4 مشینز ہمارے ترال میں ہے اور 15 یہاں پلوامہ ہیڈ کوارٹر پہ ہے۔ اسی طرح شوپیان میں ہمارے 2 کنٹرول رومز ہیں، ایک تو کیلر میں ہے، دوسرا مین شرمال میں ہے۔ 2 مشینز کیلر میں پہلے سے ہی رہتی ہے اور اس کے باقی جو 19 مشینز ہے وہ شرمال ہیڈ کوارٹر میں رہتی ہے، وہاں پہ ہمارے AE اور JE صاحب ہمیشہ متحرک رہتے ہیں۔ تو فورکاسٹ جو بھی آیا ہم پہلے سے ہی ہم فورکاسٹ کو مد نظر رکھتے ہی ہم اپنی پریپریشن ہمیشہ ہائی الرٹ پہ ہی رکھتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو۔
और कोऑर्डिनेशन जो भी हमारे कंट्रोल रूम में या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी जो कोऑर्डिनेशन वो निचली सतह पे हमारे कंट्रोल रूम्स के साथ है, जहाँ पे हमारे वो जेई साहिबान है, और हमारी कोऑर्डिनेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन 100% रहती है, और हर बात हर कोई मसला जो है उसको हम अच्छे से क्लियर जो 2 स्पेल आए हैं उस तरह भी किसी लोगों को कहीं पे भी हमने वो प्रॉब्लम होनी नहीं दी है। इंशाल्लाह जो भी स्पेल आगे आएंगे या जो बर्फबारी इस वक्त हो रही है, हमारे जो ऑपरेटर्स है तैयार है, हर जगह कहीं पे भी अगर एक्यूमुलेशन होती है हमारे मशीन उसी वक्त रोड पे आपको नजर आएंगे और क्लियरेंस अच्छे से होगी। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने श्रीनगर में एक मजहबी प्रोग्राम के दौरान इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों से मुताल्लिक़ की जाने वाली गुस्ताखी को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इन्होंने मुसलमानों के दरमियान मसलकी इत्तेहाद पर भी जोर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्मीर में पेश आए तकलीफ देह वाक़ात जिसने मिल्लत इस्लामिया को ज़ख्मी कर दिया, ऐसे वाक़ात से मिल्लत की शिराज़बंदी को सख्त ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुत्तहिदा मजलिस उलमा इन हालात पे गहरी नज़र रखे हुए हैं। बहसीत मुफ्ती आज़म जम्मू व कश्मीर मैं इन तमाम वाक़ात का जिनका ताल्लुक़ हमारे अज़ीम खुलफ़ाए राशिदीन अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन से है का संजीदा नोटिस लेते हुए मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फ़ारूक साहब से मशवरा करने के बाद हंगामी नवीयत में नुमाइंदा इजलास मौरिख़ 18 जनवरी 2025 बरोज़ शनिचरवार दिन के 2 बजे अदालत शरइया के मरकज़ी हाल शाह फैसल कॉलोनी सोहरा में तलब किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुक़्तदर उलमा को दावत दी गई है ताकि इन जैसे वाक़ात पे कदगन लगाई जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ऐसे वाक़ात दोबारा रोनुमा न हो। इजलास के इख्तिताम पे हालात के सद्बाब के लिए वाज़ेह लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हंदवाड़ा में जाली डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स निकालने वालों के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। तहसीलदार हंदवाड़ा के मुताबिक पुलिस के इश्तराक से जाली डोमिसाइल बनाने वालों की निशानदही की जा रही है ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। वर्क में हमारे पास आई थी फॉर सम करेक्शंस। जब हमने उसको करेक्शन के लिए ऑनलाइन सिस्टम पे चढ़ाया तो वी फाउंड कि वो हमने इशू ही नहीं की थी। तो शक जब इस पे हुआ तो हमने सिस्टम में चेक किया तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर सीएससी सेंटर से इशू हुई थी, जिसके तहत हमने इमीडिएटली थाना हंदवाड़ा को एक एप्लीकेशन लिखी और उसके तहत 17 मोरखा 14/1/2025 एफआईआर दर्ज हुआ। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आज सुबह जो वहाँ पुलिस पार्टी और नायब तहसीलदार गए थे उस दुकान से और 3 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी मुझे अभी पता चला है मेरे नायब तहसीलदार साहब के थ्रू कि हमने मौके पे और 3 डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिली हैं जो फेक निकली हैं। तो कुल मिला के अभी तक उस सीएससी सेंटर से 4 मिली हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। एफआईआर हो चुका है, पुलिस अपना काम करेगी और उसमें एक्शन ली जाएगी। उम्मीद है ऐसा किसी ने नहीं किया होगा बिकॉज दिस इज़ अ चांस रिकवरी जो हमने की है। मेरी ये है कि मुझे होप है कि ऐसा कहीं नहीं होगा, बट पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में जो निकलेगा दैट शैल कम फॉरवर्ड। तो लोगों के लिए आपकी क्या लोगों से गुजारिश है, जो भी आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आप वही पैसा उस ऑनलाइन सेंटर वाले को दें जो आपकी सर्विस के लिए मुंतखब है। हम उसका एक सर्कुलर भी निकाल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या रेट्स फिक्स किए हैं। मेरी नोटिस में आया है कि जनाब आप हमें 200 रुपये 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दें, हम आपको जल्दी करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आती हैं और बाय एनी हाउ हमें वी आर बाउंड टू इशू देम विद इन 15 डेज। जो आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, इनकम सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज हमें इशू करनी होती है। तो आप बिल्कुल किसी के बहकावे में ना आए। मैंने सुना है काफ़ी टाउट्स हैं जो बाहर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपसे पैसा लेते हैं। प्लीज़ किसी को कोई पैसा ना दें। देर इज़ नो बडी हु विल डू योर थिंग विच इज़ इलीगल, और जो लीगल होगा वो आपका अपने टाइम पीरियड में 15 दिन के अंदर अंदर इशू हो जाएगा। जिसकी सर्टिफिकेट में कोई इशू होगा उसको ऑनलाइन ही रिवर्ट किया जाता है कि आपको क्या इंप्रूवमेंट इस सर्टिफिकेट में करनी है। तो मेरी लोगों से इल्तिजा है जो सरकारी रेटें मुंतखब की गई हैं वही इन CSC सेंटर्स पे या कंप्यूटर सेंटर्स पे करें, उससे अलावा कुछ ना दें। और अगर आपसे कोई डिमांड करता है तो आप इलाके के SHO या मेरे ऑफिस में उसकी कंप्लेंट करें कि दिस समबडी हु इज आस्किंग फॉर अ मनी ऑन द नेम ऑफ गेटिंग द एनी डॉक्यूमेंट क्लियर्ड इन एनी ऑफिस। श्रीनगर में जश्न जमहूर के उन्वान से एक म्यूज़िकल प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के इश्तराक से प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया था। आज का आगाज़ हमने इस कड़ाके की ठंड में कश्मीर से करना चाहा, तो इसलिए इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। यहाँ के फ़नकार, यहाँ के लोग ब्रदरहुड, पीस और अमन का पैगाम देना चाहते हैं और एक एक्टिविटी हो हमारे फ़नकारों के लिए, हमारे लोगों के लिए एक अच्छे पैगाम के साथ, इसलिए इस टाइटल ये रखा। जो यौम जमहूरिया आने वाला है 26 तारीख को, जनवरी को यौम जमहूरिया मना रहे हैं, तो ये कल्चर एकेडमी ने अपने आर्टिस्ट को उसमें इनकरेज करने के लिए आज के इस फंक्शन का जो इनेकाद किया है। हम लोग चाहते हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी चाहते हैं कि लोकल आर्टिस्ट को और ज़्यादा इनकरेज किया जाए, इनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट जाएं, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हम अपने कल्चर का सही पोर्ट्रेयल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में और उसके अलावा पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। बहुत अच्छा है हमारे कश्मीर के लिए। अगर ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे होते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ साथ में ये भी होता है जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं नए आर्टिस्टों को मौका मिलता है। जी सर, नए अगर ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे तो नए आर्टिस्टों को मौका मिलेगा। वो सामने आएंगे, प्रोग्राम करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि यौम जमहूर है क्या। अभी तक तो बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें पता नहीं होते, जो छोटे छोटे नए होते हैं। तो ऐसा होगा तो तभी कर। वादी कश्मीर में मंशियात की तस्करी और इसके फैलाव के खिलाफ मुहिम जारी है। बारामूला में पुलिस ने खुसूसी कार्रवाई करते हुए उड़ी में एक मुबैना ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 1 किलो 208 ग्राम चरस बरामद की गई। पकड़े गए मुलजिम की शिनाख्त सलीम खान साकिर उड़ी से की गई है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इसे जेल मुंतकिल कर दिया। गांधरबल के तलमला में आज तंबाकू और सिगरेट नोशी के नुकसानात से अवाम को खबरदार करते हुए अवामी मुकामात पर सिगरेट और तंबाकू के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालानात आयद किए गए। सेकेंड राउंड था। हमारे को इंस्ट्रक्शंस है कि हर थर्सडे हम ये ड्राइव करेंगे कोटपा एक्ट के तहत, ताकि हम लोगों को अवेयरनेस करें सिगरेट स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस में वो ना करे ज़्यादा, क्योंकि जैसे स्कूल्स के बाहर है या मार्केट प्लेसेस है, टूरिस्ट प्लेसेस है। आज जो हमारी ड्राइव थी, आज हमने तुलमुला खीर भवानी टेम्पल के बाहर ये ड्राइव स्टार्ट की, जहाँ पर हमने बहुत सारे वायलेटर्स को फाइन किया। और हमने यहाँ कमरिया पार्क में, जो यहाँ पे पब्लिक पार्क है हमारी यहाँ पे गांधरबल में, आज हमने वहाँ से वायलेटर्स को फाइन किया है। ये ड्राइव हमारी पूरी कंटिन्यू रहेगी, ताकि हम, और आज हमने अवेयरनेस भी लोगों को दे दी सिगरेट स्मोकिंग के हैज़ार्ड्स के बारे में भी, और पब्लिक प्लेसेस में सिगरेट स्मोकिंग ना करने के लिए भी। आज हमारा फाइन भी हमने बहुत सारों को किया और हमने अवेयरनेस भी दे दी।
اور ہمارا وہاں پہ کچھ پوسٹرز بھی لگے تھے وہ بھی ہم نے وہاں سے ہٹا دیے. اسکولز میں بھی ڈرائیو کرتے ہیں ہم, اسکولز میں بھی ان کو اویئرنیس دیتے ہیں. ہماری RBS کے ٹیمز ہوتی ہیں جو وہاں چیک کرتی ہیں, وہ وہاں پہ اویئرنیس دیتے ہیں اسکولز میں. اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو ہم اویئر کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کیمپس ہوتے ہیں ہمارے اسکولز میں, اور اسکولز کے باہر, انسٹیٹیوشن کے باہر اپ ٹو 100 یارڈ وہاں پہ کوئی بھی شاپ ایسی نہیں ہونی چاہیے, یا وہاں پہ کوئی بھی سگریٹ اسموکنگ الاؤ نہیں کرتے ہیں ہم. ہمارے RBS کے ٹیمز بھی اس کے میں لگے ہوتے ہیں. ہندواڑہ میں آج محکمہ برقی کی جانب سے PM سوریہ گھر مفت بجلی اسکیم سے عوام کو واقف کرایا گیا. اس ضمن میں ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں محکمے کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کرتے ہوئے عوام کو اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بھی اس کا بتایا تھا, تو ہم نے اس کو آج یہاں پر یہ کیمپ لگایا ہے انوائرنمنٹل ہال میں, اسی لیے کہ لوگوں میں یہ جاگرتی آ جائے, ان کو یہ پتہ چلے کہ PM سوریہ گھر جو ہماری یہ اسکیم پرائم منسٹر صاحب نے لانچ کی ہے, اس کا مقصد کیا ہے. اس کا لب لباب یہی ہے کہ ایکچولی یہ مفت بجلی ہے. مفت بجلی مینز PM سوریہ گھر مفت بجلی یہ ہے کہ ان کو انسٹال کرنے میں کچھ پیسہ ان کو دینا پڑتا ہے, لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ اس کو سبسڈی ملتی ہے. تو اور اس کی جو لائف بتائی گئی ہے کم سے کم وہ 25 سال کی لائف ہے, اور 5-6 سال میں یہ اپنا جتنا بھی یہ خرچہ کر رہے ہیں اس میں مطلب ریکور ہو جاتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے حساب سے, جن کی جو ہم ان کو پاور دیتے ہیں یہ ہم کو واپس پھر وہ ایکسپورٹ پاور کرتے ہیں. سری نگر میں DIG CKR نے لال چوک سے روانہ ہونے والے سائیکلرز کو کنیا کماری کے لیے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. واضح سائیکلرز آلودگی سے پاک ہندوستان مہم کے تحت کنیا کماری روانہ ہوئے ہیں. نام منگل بھانوشالی ہے, میں 64 ایئرس کا ہوں اور میں ایڈونچر کرتا ہوں. ہمارا ادیش جو ہے یہ پرتھوی کو بچانا ہے. اگر پرتھوی کو بچانا ہے تو پولوشن مکت کرنا ہی پڑے گا, اور اگر پولوشن مکت کرنا ہے تو سائیکل یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو آج ہم یہ ایج میں بھی ہمارے ساتھ میں ہمارے کیپٹن ہیں ستیش جی جو 67 ایئرس کے, اور ان کے نام پہ سائیکلنگ میں ورلڈ ریکارڈ 2 رجسٹر ہیں. تو ہم یہ دنیا کو میسج دینا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے ہم یہ پورے بھارت کو میسج دینا چاہتے ہیں. یدی یہی پولوشن پھیلا رہا تو بھارت بھی نہیں بچے گا, دنیا بھی نہیں بچے گی, اور دیش کو بچانا ہے تو پولوشن سے مکت کرنا ہی پڑے گا. کل ہم ڈال لیک پہ گئے تھے. یہ ڈال لیک ایک سمے پہ سب سے سوچھ اور سب سے سندر مانا جاتا تھا. سندر آج بھی ہے لیکن سوچھ نہیں ہے. اس میں بھی کتنا پولوشن لوگوں نے کیا ہوا ہے. تو یہ جاگرتی ہمیں آنی چاہیے کہ یہ پولوشن مکت بھارت ہم کریں گے تو اپنے لیے کریں گے, ہم کوئی اوروں کے لیے یہ نہیں کرنے جا رہے ہیں. تو پولوشن مکت بھارت کرنے کے لیے ہم کشمیر سے چلیں گے, جموں جائیں گے, سری نگر سے ہم جموں جائیں گے, جموں سے ہم پنجاب, ہریانہ, گجرات, مہاراشٹر, گوا, کرناٹکا ہو کے ہم پہنچیں گے کنیا کماری تک. آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. مرکز نے سینٹرل گورنمنٹ امپلائیز کے لیے 8ویں پے کمیشن کو دی منظوری. جائزہ لینے 3 رکنی کمیٹی دی جائے گی تشکیل. مرکز وزیر اشونی ویشنو نے کیا اعلان. جوڈیشل عہدوں کی تشکیل کا تقررات کا معاملہ. جموں کشمیر حکومت کے چیلنج کو سپریم کورٹ نے کیا خارج. راجوری کے بڑھال دیہات میں فوڈ پوائزن کے نتیجے میں ہوئی اموات. طبی ماہرین نے پیش کی ابتدائی تحقیقات.
ओबीसी को जम्मू कश्मीर में तहफ्फुज़ात बीजेपी ने फराहम नहीं किए, अशोक कौल का बयान, कहा कमीशन ने अपना काम किया है। मुक़द्दस हस्तियों की शान में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त, श्रीनगर में पेश आए वाक़े की मुफ्ती आज़म ने की मजम्मत, सख्त का कानूनी कार्रवाई का किया मुतालबा, मसलिक की इत्तिहाद पर भी दिया जोर। बारामूला में मंशियात की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, मुबैना ड्रग स्मगलर गिरफ्तार, मंशियात की गई जब्त। और वादी के कई एक हिस्सों में हुई ताज़ा बर्फबारी, कश्मीर में ट्रेन खिदमात आर्जी बुनियादों पर कर दी गई बंद। इसी के साथ 4TV कश्मीर अख्ताम को पहुंची, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।